Good morning, students. Today we are going to learn a new chapter. The chapter names Neha's Alarm Clock. This is the book of class 4, standard 4. So open page number 6. And today we are going to learn a new chapter. The chapter number is first, the second unit, and the name of the chapter is Neha's Alarm Clock. Now, students, I just want to tell you something because we are learning English. So here it is written Neha's Alarm Clock. Now, what does it mean? Let me tell you. Neha's Alarm Clock. Neha's apostrophe as is written. Whenever the apostrophe as is written after the name, what it defines, what it shows, it shows that नेहाज अलार्म क्लॉक ये ओनरशिप दर्शाता है, ये ओनरशिप दिखाता है। ये जो ओनरशिप है, अलार्म क्लॉक तो है, लेकिन किसका है अलार्म क्लॉक? द अलार्म क्लॉक इज़ किसका है? ऑब्वियसली नेहा का है। नेहा का अलार्म क्लॉक है। क्लॉक तो है, अलार्म तो बजा, लेकिन किसका अलार्म क्लॉक बजा? नेहा का। बिकॉज द नेहाज एपोस्ट्रॉफी एस इज़ टेलिंग यू द ओनरशिप ऑफ द पर्टिकुलर पर्सन। सो लेट्स स्टार्ट. Narrator. Now here it is written narrator. Underline it. I will ask you the spelling of narrator. Narrator. It is written over here. Now narrator. Who is the narrator? जो narrate करता है, जो story बोलता है. Now first you have to know that किसने story लिखी है. So I want to draw your attention over here. Here it is written adapted from Neha's Alarm Clock by Girija Rani Asthana. So this is the narrator. Girija Rani Asthana is a narrator, and the person speaks that, saying that ring ring ring, up goes the alarm clock at 6 in the morning. सुबह के 6 बजे और अलार्म क्लॉक ने बोलना शुरू कर दिया. जैसे आपके घर पे अलार्म क्लॉक बजता है सुबह में, मम्मी आपको उठाने के लिए अलार्म क्लॉक रखती है, या आप खुद रखते हो, या आपके पापा रखते हैं, आपके भाई रखते हैं, आपके बहन रखते हैं, वैसे ही यहाँ पर अलार्म क्लॉक बजता है. कितने बजे बजता है? यू शुड नो दैट. 6 o'clock. सुबह का 6 बजा है और अलार्म क्लॉक बजता है. नेहा मेक्स अ फेस एंड कवरिंग हर ईयर्स. नेहा मेक्स अ फेस एंड कवरिंग हर ईयर्स विथ अ पिलो. पिलो मीन्स तकिया. आप तकिया यूज़ करते हो हेड के नीचे रखने के लिए. व्हेनेवर यू आर स्लीपिंग यू यूज़ पिलो. PILLOW, पिलो. So Neha makes a face and covering her ears with pillow because she doesn't like to wake up. She wants to sleep. So she doesn't like to wake up, and the alarm clock is ringing over there, and she wants to sleep. So what she is doing? She is taking a pillow, she is putting on her head, and she is trying to sleep. Here it is written snuggles. Snuggles under the warm blanket. You can see in the picture. That the girl is putting the pillow on his head, covering her body with the blanket. Why? Because she wants to sleep. She does not want to wake up. She does not want to get up. She wants to sleep. And that is why she is putting the pillow on her head and she is covering her body with the blanket because she does not want to get up. And so here it is written snuggles under the warm blanket. Snuggles means to hug, to take cow. वो ब्लैंकेट के अंदर सो गए, ब्लैंकेट को पूरा ओढ़ के. But she knows she has to get up. She mutters to herself. एक दफ़ा ऐसा बताया गया है, अंदर ऐसा आपको दिखाया गया है कि सी डज़ नॉट वॉन्ट टू गेट अप, बट अपने आप को बोल रही है मटर्स. ओके, मन ही मन बोलना, अंदर बोलना. जैसे हम बहुत सारी चीज़ बोलते हैं, राइट? अगर हम हमारे फ्रेंड्स के साथ हम बैठे, अगर उनको कुछ बोलना हो, लेकिन डायरेक्टली हम उसको नहीं बोलते, लेकिन हम अपने बाय हार्ट मीन्स हम उसको मटर्स करते हैं अपने अंदर ही कि. तो वैसे ही ये जो गर्ल है वो क्या बोल रही है? यस, बट सी नोज दैट सी हैज़ टू गेट अप. सी मटर्स टू हरसेल्फ. वो अपने आप को बोल रही है कि मुझे खड़ा होना तो पड़ेगा ही. क्यों? बिकॉज अलार्म क्लॉक इज़ दैट. अलार्म क्लॉक बजा है, क्यों खड़ा होना पड़ेगा? देखते हैं, चलो आगे. नाउ नेहा.
So now you are having a name of a girl. Here it is written Neha. ये जो गर्ल सो रही है उसका नेम क्या है? नेहा. She does not want to get up. Yes dear, she does not want to get up, but she has to. उसको उठना ही पड़ेगा. This alarm clock always rings at 6 and pulls me out of the bed. Neha is saying that this alarm clock, ये जो बज रहा है वो अलार्म क्लॉक मुझे रोज़ उठा देता है 6 बजे और मुझे मजबूर कर देता है उठने के लिए. मुझे सोना होता है लेकिन वो मुझे जगा ही देता है. कितने बजे जगा देता है? 6 o'clock. इट इज़ सो अनफेयर. ये सही नहीं है. इट इज़ रिटन अनफेयर. अंडरलाइन करो बेटा. अनफेयर मीन्स ये सही नहीं है. इट इज़ नॉट प्रॉपर थिंग टू गेट मी ऑफ फ्रॉम द बेड. एंड देन शी इज सेइंग, ओह हाउ आई वुड लव टू स्लीप लिटिल लॉन्गर इन द मॉर्निंग. एक्सक्लेमेशन मार्क इज गिवन. वो सोच रही है. एक्सक्लेमेशन मीन्स सोचना. टू एक्सप्लेन, ओके, टू अज्यूम. ओ वाओ, अज्यूम मीन्स सोचना कि अगर कितना अच्छा होता कि मैं और कुछ घंटे या और कुछ मिनट्स में सो पाती. सो हियर इट इज़ रिटन, ओ हाउ आई वुड लव टू स्लीप अ लिटिल लॉन्गर इन द मॉर्निंग. मैं सुबह में और ज़्यादा सो सकती तो, लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं. क्यों? बिकॉज अलार्म क्लॉक बज गया. आई विश दिस क्लॉक वुड फॉरगेट्स इट्स जॉब समटाइम्स. हियर इट इज रिटन फॉरगेट, भूल जाना. फॉरगेट मीन्स भूल जाना. आई विश दिस क्लॉक वुड फॉरगेट. वो सोच रहे कि कोई दिन ऐसा भी हो सकता है कि अलार्म क्लॉक बजे ही ना और मैं उठूँ ही ना, तो कितना मज़ा है. मैं सो ही रहूँ. हाँ, मुझे ज़्यादा घंटे मिलेंगे सोने के लिए, ज़्यादा मिनट्स मिलेंगे सोने के लिए. शी इज़ थिंकिंग लाइक दिस. नाउ द नैरेटर सेज दैट समथिंग फॉल्स. नेहा स्माइल्स. नैरेटर सेज समथिंग फॉल्स. कुछ गिर गया, कुछ पड़ा. और जब ऐसा ये बोलते हैं तब नेहा स्माइल्स करती है. यहाँ लिखा नेहा स्माइल्स. अब देखो क्या होता है, क्यों स्माइल की. ओके, लेट्स सी. नेहा सेज, ओह माई क्लॉक हैज़ फॉलन. क्या पड़ा? क्लॉक हैज़. अंडरलाइन इट. ओह माई क्लॉक हैज़ फॉलन. यहाँ पर बोला ना नैरेटर ने, समथिंग फॉल्स. नेहा स्माइल्स. कुछ पड़ गया, नीचे पड़ गया, लेकिन क्या पड़ा? माई क्लॉक हैज़ फॉलन. नेहा सेज दैट हाउ हैप्पी आई एम टुमारो आई कैन गेट अप लेट. अब अलार्म क्लॉक नीचे पड़ गया है. अलार्म क्लॉक नीचे पड़ गया है. व्हाट डज इट मीन? अब उसको पता चल गया अलार्म क्लॉक नीचे पड़ गया, वो टूट गया. तो वो क्या बोल रही है कि कल सुबह मुझे अलार्म क्लॉक परेशान नहीं करेगा. यहाँ पर लिखा है देखो, हाउ हैप्पी आई एम टुमारो आई कैन गेट अप लेट. अब मैं कल शांति से उठ सकती हूँ, लेट उठ सकती हूँ. अब मुझे कोई परेशान करने वाला है नहीं. ये रोज़ अलार्म क्लॉक मुझे 6 बजे 6 बजे उठा देता था, अब वो मुझे परेशान नहीं करेगा, वो मुझे उठाएगा नहीं. तो नाउ आई कैन स्लीप अ लिटिल लॉन्गर. इट इज़ रिटन लिटिल लॉन्गर इन द मॉर्निंग. अब ये मॉर्निंग में आराम से सो सकेगी. ऐसा ये सोच रही है, नेहा सोच रही है. अब देखो नैरेटर क्या कहते हैं. नैरेटर सेज नेक्स्ट मॉर्निंग देयर इज़ नो अलार्म. अब नेक्स्ट मॉर्निंग में अलार्म नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? यस, यू आर राइट. नेक्स्ट मॉर्निंग में अलार्म नहीं होगा क्योंकि अलार्म तो टूट गया, नीचे पड़ गए. सो अब कैसे नेहा को अलार्म जगाएगा? लेट्स सी. सो नेहा स्लीप्स एंड स्लीप्स. द स्मॉल चिरपी बर्ड्स which come to the window seal every morning find Neha still sleeping. नैरेटर क्या बोल रहे हैं? तो चिंता मत कर, अब कल अलार्म क्लॉक नहीं होगा ना, तो ये बर्ड्स आएंगे. यू कैन सी इन द पिक्चर द बर्ड्स आर देयर. यस, यू कैन सी द प्रॉपर पिक्चर ऑफ द बर्ड्स. हियर इज अ नेहा. यस, एंड द बर्ड्स आर कमिंग थ्रू द विंडो. नाउ व्हाट डज इट मीन ऑफ सील? ये जो सील का मीनिंग क्या है? यू कैन सी दिस विंडो. जो विंडो का ये जो नीचे का भाग है या ये ऊपर का भाग है जहाँ पर हम विंडोज़ को बंद करते हैं, इसको बोलते हैं सील. हियर आई एम शोइंग यू, सी इट इज़ कॉल्ड द सील. तो वो द बर्ड इज सिटिंग ऑन अ सील एंड द बर्ड्स आर इनसाइड ऑल्सो एंड दे आर चीपिंग. चीपिंग मीन्स द साउंड ऑफ अ बर्ड. सो हियर इट इज़ रिटन द स्मॉल chirping birds which come to the window seal every morning find नेहा still sleeping. वो बर्ड्स अंदर आ गए हैं और देखा कि नेहा तो सो रही है, तो चिरपिंग करते, साउंड्स करते. बर्ड्स साउंड्स करते हैं ना सुबह में जब आप उठते हो, वो ऐसा साउंड्स करते और नेहा को जगा देते. बर्ड सेज वेक अप डियर, वेक अप फास्ट. बर्ड्स बोल रहे हैं नेहा को, चलो नेहा उठो, जल्दी उठो. नैरेटर सेज नेहा गेट्स अप विद अ स्टार्ट. चलो आप उठ जाओ, अब आप अपना नया दिन स्टार्ट करो. सो स्टूडेंट्स, टुडे हम यहाँ तक ही देखते हैं. नाउ टुमारो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी द स्टोरी फ्रॉम
the Neha Singh. So from here we have seen. Okay, so just tick mark that from tomorrow we will see from here. Okay, so you are having a hard words. I am telling the hard words first. Alarm, narrator, pillow, snuggles, blanket, warm means garam, mutters, unfair, forget, bhul jana, fallen, chirpy, and still. These are the hard words. Okay, so underline it. We will write when first we will finish the whole lesson and then we will write the new words. Okay, I hope you have understood, students, and on the next lecture we will see from the start over. जहाँ से ही हमने स्टार्ट किया था और जहाँ तक हमने एंड किया वहाँ से यहाँ नेहा से हम दूसरे वीडियोस में देखेंगे. बाय बाय, टेक केयर.